This is plus, this is minus. Moment will be like this. So here it will be exactly reverse. Moment will be like this. Here the moment will be up. So here the moment will be down. So ultimately they will cancel each other and the net electric dipole moment will become 0. 0. 0. Right? So it will become 0. This is what happens in the absence of external electric field. Right? So I can say here due to thermal agitation, a vibration, the net electric dipole moment of entire slab will be 0, right? Yes. Yes, sir. Now you know the reason. You know the reason why it will be 0, because if I consider a unit volume here, maybe this will be the unit volume, right? You assume that this is the unit volume. So now what happens? The magnetic moment, right, of one molecule, it cancels with the other molecule, right? So ultimately, every unit volume will have net electric dipole moment that is 0. It means right now, what is the polarization, bacha? 0. Yes. Yes. There is no moment. I hope you're getting. Yes. Yes, sir. ठीक है बच्चों. Second case, you will apply the electric field. So E bar is not equal to 0. So ultimately, electric field will have direction, that is E bar. Now, because of electric field, every molecule will experience torque. And if the electric field is strong enough, definitely all molecules will align in such a manner their magnetic electric dipole moment will align in the direction of field. Yes or no? Yes. 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 Yeah. So all molecules ka moment will align in the direction of electric field. So ultimately the net electric dipole moment right now, it is not going to be 0. Because all will add up because they are in same direction. And the moment will be aligned. The net electric dipole moment will be in the direction of field. So here there is a chance that it may increase, but it will align in the direction of electric field. But when it comes to non-polar molecule, definitely electric dipole moment will be induced, right? Yes, sir. Yes. So here I can write P is not equal to 0. The reason is very simple. Pz is not equal to 0. So there is polarization. And if I consider unit volume here, so definitely the moment is not going to be 0 because they will add up. And the net moment, of course, it is in the direction of field. Yes. Yes. Yes, sir. Sir. So here I can definitely tell in external electric field, to be very precise, every molecule will experience what? Torque, right? Yes. Yes. So I can write the different dipole moments I would say the dipole due to electric field dipole moment of different molecule, because there are many molecules here. Molecules. What will happen to electric dipole moment of all molecules? Don't you think it will try to align in the direction of electric field? Yes, Yes. sir. Yes. Molecules tend to align in the direction of electric field. Of course, you know the reason, because it will experience torque. Direction of electric field, right? Yes. So as a result, it develops net electric dipole moment, net electric dipole moment in the direction of electric. Is it okay, bacha? Up to this much, is it very clear? Yes, sir. Yes. Now, obviously, don't you think this alignment, it depends on electric field applied? If the strength of the electric field is weak, then obviously it may not align in this form,
right? Yes. 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 So Yes. ultimately, I can definitely say either polarization. So when I say polarization, it means the net electric dipole moment of unit volume, right? Depends on polarization. Depends Electric on intensity. number one. Definitely, it depends on strength of electric field, right? Yes. Electric intensity. Yes. Yes, strength of electric field. And second, it depends on, don't you think, but if the temperature outside is more, so ultimately it will take more time, more strength. Yeah, you have to apply more electric field to align in the direction of Yes, electric sir. field, Yes. right? Yes. 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 Then it depends on temperature, Sir, temperature. of the system. Yeah, temperature of the system, yeah, temperature of the surrounding. Yeah, I would say temperature. Is it okay? Sir, नहीं समझा. Yes. बच्चा बाहर का जो टेम्परेचर है वो तो इसको वाइब्रेट करने का कोशिश करेगा ना बच्चा, Yes. तो Yes. फील्ड को तो मेहनत करना पड़ेगा ना. Yes, sir. समझा. Yes, ये sir. टेम्परेचर किसको क्रिएट करता है? रैंडमनेस को. रैंडमनेस. Yes. वो चाहता है कि वो रैंडमली अलाइन रहे, राइट? Yes, sir. समझा. अभी टेम्परेचर लो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम में तो भी अलाइन होगा. टेम्परेचर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि पकड़ पकड़ के उसको अलाइन करना पड़ेगा, Yes. राइट? Yes. सो इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. इज इट ओके? Yes. Yes, sir. हाँ, मतलब अभी बोलो बच्चा पोलर होने दो, नॉन पोलर रहने दो, एंड में दोनों पोलराइज होता है. सो विल इट मेक एनी डिफरेंस? No. No. Sir, repeat. पोलर में डाइलेक्ट्रिक्स भी पोलराइजेशन होता है, बट अप्रोच अलग है. एक में इंड्यूस होता है, दूसरे में जो है वो अलाइन होता है, राइट? Yes. Yes. सो आई कैन डेफिनेटली से इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ डाइलेक्ट्रिक्स. व्हेन आई से बोथ डाइलेक्ट्रिक्स, मतलब मैं पोलर का भी बात कर रहा हूं, नॉन पोलर के भी बात कर रहा हूं. डेवलप net electric dipole moment in the direction of electric field. In the direction of electric field. Is it okay? Yes. Yes. एंड आपको पता है कि अभी इधर पोलराइजेशन कितना हुआ देखने के लिए मैंने आपको बताया, फॉर्मूला पहले ही बताया. Polarization is nothing but what bacha? That is the electric dipole moment gained by unit volume of the Unit substance volume. when it is Yes. placed in external electric field. बराबर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी कोई डेफिनेटली रहेगा जिसको ये पूरा स्टेटमेंट याद रखने को तकलीफ होता रहेगा, तो वो लोग क्या लिखेंगे? द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल, या आई वुड से नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट per unit volume is polarization. Is it okay? Yes. Yes, sir. ये जिसको याद नहीं आता है वो लिखेंगे, राइट? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन या इज पोलराइजेशन, जिसका वजह से हम लोग PZ will be equal to P upon V लिख सकते हैं. क्लियर अप टू दिस मच? Yes, Yes, sir. sir. अभी बच्चा ये P का यूनिट क्या होता है याद करो? कूलम मीटर है, याद है? Kilometer. Kilometer. वॉल्यूम तो मीटर क्यूब है आपका. Meter cube. Coulomb per meter square. Coulomb per square. SI unit, obviously it is going to be coulomb per meter square. Is it okay? Yes, sir. Yes. sir. ठीक है. अभी बच्चा एकदम सोच के बताना, ये जो पोलराइजेशन है, राइट? इतना तो पता है कि इट increases with electric field up to certain limit, right? उसके बाद तो कांस्टेंट होता है, Yes. राइट? अभी Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड का साथ जो ऐसा इंक्रीज होते जाता है उसको हम लोग, जो डाइलेक्ट्रिक को हम लोग लीनियर या आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं. मतलब बच्चे इधर नहीं लिखना है, इसका बाद लिखना है, राइट? फॉर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक, कभी कभी इसको लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक भी बोलते हैं. ये जो पोलराइजेशन है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. बच्चा एनी कंफ्यूजन? No, sir. सर इसमें इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी आएगा ना?
हाँ हाँ हाँ, डेफिनेटली आएगा। बच्चे ये आइसोट्रोपिक मतलब मालूम है, इधर दो मॉलिक्यूल है यूनिट वॉल्यूम में, तो यूनिट दूसरा यूनिट वॉल्यूम में भी दो रहेगा। मतलब हम लोग जैसा केमिस्ट्री में होमोजीनियस बोलते हैं ना, कॉन्सेंट्रेशन सब जगह Yes. सेम है, तो Yes. Yes. वैसे मतलब आइसोट्रोपिक मतलब क्या होगा, सब जगह प्रॉपर्टी जो है लाइक डेंसिटी, टेम्परेचर, ये सब हर एक यूनिट वॉल्यूम में क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट। Yes. मतलब Yes, sir. हम लोग बोल सकते हैं फॉर एनी डाइलेक्ट्रिक, if the polarization is directly proportional to electric intensity, then it is called isotropic dielectrics. बराबर है। Yes, sir. आइसोट्रोपिक का एक बार रिपीट करो ना। बच्चा आइसोट्रोपिक मतलब एक मेटीरियल का हर एक जगह या हर एक यूनिट वॉल्यूम में उसको जो प्रॉपर्टीज रहता है, जैसा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, फिजिकल राइट, प्रॉपर्टी। वो सेम रहता है, यस सर। राइट। वो सेम है तो ऑब्वियसली इधर मोमेंट एम आता है तो इधर भी एम आएगा, इधर भी एम आएगा, तो सब जगह सिमिलर रहेगा, राइट। यस सर, समझा। मतलब अभी लीनियर क्यों बोलता हूं, क्योंकि पीजेड और ई का ग्राफ बना है तो लीनियर आता है, स्ट्रेट लाइन, इसके लिए लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, राइट। बच्चा बराबर है। यस सर। Yes, sir. Yes, और sir. अभी इसको Yes, इक्वेट sir. करना है तो तुम क्या करेगा, कांस्टेंट लेके आएगा। इधर कांस्टेंट को हम लोग काई बोलते हैं, ई, सो इसको सफिक्स स्मॉल ई लिखते हैं। सो इधर जो काई ई है मैथमेटिकली कांस्टेंट है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या ड्राई इलेक्ट्रिक का हिसाब से उसको हम लोग इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी बोलते हैं। आपने पढ़ा होगा ना, यस Yes. सर। मैग्नेट। Yes, sir. ससेप्टिबिलिटी, राइट। बच्चे इज इट ओके? Yes. Yes. Yes, sir. Yes. ऑब्वियसली अभी सपोज मैंने वैक्यूम का बात किया, वैक्यूम, तो वैक्यूम में तो मॉलिक्यूल ही नहीं होता है, तो उसके लिए जो काई ई है उसका वैल्यू 0 होता है, इतना याद Zero. रखना, Yes. Yes. राइट। सो ये जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चा, सो आपको शायद 12th में मैग्नेटिज्म तो शुरू हुआ होगा ना, तो आप बता रहे हो मैग्नेटाइजेशन सब आपको पता है, राइट। एंट्रेंस में, हाँ, एंट्रेंस में हुआ था ये। अच्छा, एंट्रेंस में हुआ था मैग्नेटिज्म का, यस मैंने ही सर। पढ़ा है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड गुड, यू पीपल रिमेम्बर। मेरे को लगा क्योंकि 12th में तो ये मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होने के बाद हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ाते हैं। अच्छा, याद है आपको 11th में आपने गॉस थ्योरम पढ़ा था मैग्नेटिज्म में भी? Yes. Yes, sir. उधर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो आता है। Zero Zero होता है. हाँ, तो क्योंकि आपको आइडिया है, क्योंकि जितना लाइंस ऑफ फोर्स बाहर आते हैं बाहर उतना ही जाता है अंदर उतने अंदर जाता आता है, भी है. अंदर आता है। Yes. right? Okay, good good, so you people remember what you know what we done in 11th standard. बच्चे everything is clear, any confusion here? नो सर। मतलब No, इधर sir. आपको इतना समझ में लेना है कि मैं पोलर ले लूं, नॉन पोलर ले लूं, कुछ फर्क नहीं गिरेगा, क्योंकि दोनों पोलराइजेशन एंड में होता ही है, राइट। यस। Yes. फाइन बच्चा, अभी मेरे को लगता है ये कभी कभी कई का यूनिट पूछते हैं, डायमेंशन पूछते हैं, तो उसको निकालने को तकलीफ नहीं होना चाहिए आपको, राइट। कई का Yes. यूनिट पूछा तो ई को उधर लेके आओ, तो पीजेड का यूनिट देखो, ई का यूनिट देखो, तो कई का मिलेगा, राइट। Yes. Yes, sir. Yes, sir. फाइन बच्चे, कंप्लीट करो।
Done, sir. No, sir. Acha, finished? Yes, No, sir. sir. Okay, okay, complete, complete. Done, sir. So everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so I'll rub the board. Fine. So next it is going to be the reduction of electric field due to polarization of dielectric. Means due to polarization inside the dielectrics, of course, electric field will be reduced. Yeah, it will be decreased. That we will see how it is decreased. Yeah, why it will be decreased and what will be the value, all these things. So anyway, next one, it is reduction of electric field. Reduction of
electric field due to polarization of a dielectric. Due to polarization of dielectric. No. So, bacha, to understand this, first what we will do, so we'll take two parallel plates. So this is plate number 1, you can take it as A, and this is plate number 2. Of course it is B. Now what we will do, these two plates, they are connected to a cell. So if they are connected to a cell, what will happen? They will get charged. So obviously one plate will have positive charge and another plate will have negative charge. You agree with this? Yes, sir. Yes, sir. And Yes, there is sir. positive and negative charge. Ultimately, in between the plates, a electric field is produced, and this electric field, I'll take it as E bar. Is it okay? Yes. Yes. But I have shown only one arrow. It does not mean that only electric field is here. Of course, it is in between the two plates. You're getting me? Yes. Fine. Now what we will do, bacha, you will take one dielectric slab made up of polar molecule. You can take any polar also, you can take a non-polar also, you can take, it's up to you. So we'll place a dielectric slab and you will place it inside, yeah, exactly between the two plates, charge plates. Now, as I told before, initially what will happen if it is made up of polar molecule, the electric dipole moment of these molecules, it will be randomly aligned. You agree with this? Yes, sir. Yes, sir. Plus, plus, minus, plus, minus, plus, minus, like this, right? Right, Vicha? Yes, sir. Now, because of external electric field, obviously, you know, it will get polarized. What will happen, Vicha? It will get polarized. Right? Polarized. So you're going to have same plates again. That is, this is A and this will be B. But you have to be very careful because entire thing, you know, depends on the understanding. Fine. So you got two rods. So I will make rods here also because I need one more diagram for that. Okay, so this is A and this is B, right? So charge on A, it's as usual positive. And this is negative, right? Yes. And here also there will be electric field, that is E bar. And here also there will be electric field E bar. Now inside this, obviously we have got dielectric slab. Now don't you think, bacha, there will be, because of external electric field, there will be polarization. And you know what will happen in polarization. If the field is strong enough, minus plus, minus plus, Aligned this in the is direction of magnetic field. Electric field. right. Yes. So this is how it is going to align, right? Yes. Yes, sir. सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी तरफ आएगा. क्या बोल रहे हो बच्चा? सर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो बराबर है, बात बराबर है. सो बच्चा अभी उसका भी पहला अभी क्या करना है हम लोग को, देखो. अभी ये जो बच्चा स्लैब है,
तो इसमें कितना सरफेस है बच्चा? 6 है, बराबर है? Yes. नहीं समझे। Yes. बच्चा स्लैब, डाइस, डाइस, अभी लूडो खेलते हैं तो डाइस में कितना नंबर होता है बच्चा? 6 नंबर Yes. रहता है ना। 6 तो Yes. कितना फेस होता है? देखो ऐसा, 1 समझा। 2 3 Yes, sir. 4, सामने और पीछे, ऐसा कितना Yes. फेस होता है? 6 रहता है ना। Yes. Yes. अभी 6 का 6 फेस में, इधर 6 का 6 फेस में मैं बात करूंगा, तो देंगे हर एक फेस में प्लस माइनस है, प्लस माइनस है, तो नेट चार्ज Yes. क्या होगा? 0, 0 हो जाएगा। Zero. Yes. राइट? Yes. 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 बच्चा अभी क्या हुआ है, ये जो 4 फेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है उसको भूल जाओ। कौन सा 4 फेस बच्चा? 1 2 3 4, उसको भूल जाओ। यू कंसिडर द 2 फेस विच इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये वाला और ये वाला। Yes. डोंट यू Yes. थिंक उधर बच्चा नेट चार्ज 0 नहीं है, क्योंकि इधर सब नेगेटिव आ चुका है, इधर सब पॉजिटिव आ चुका है, राइट? Yes. Yes. बच्चा यू गेटिंग मी? Yes, Yes. sir. Yes, Yes. sir. बच्चा सपोज मैंने इधर बनाया डायग्राम, तो एक्चुअली इधर बनाना नहीं पड़ेगा क्योंकि एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि क्या होता है। जो ऐसा अलाइन हुआ है, देखो ऐसे, राइट? राइट बच्चा? Yes, Yes, sir. 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 अभी इतना तो पक्का है, ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जिसका वजह से ये जो पोलराइजेशन आ चुका है, मतलब इसमें एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आ गया जो ये डायरेक्शन में, वो तो आपको पता ही, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चा, ये जो सरफेस है, देखो ये वाला नंबर 1, नंबर 2, डोंट यू थिंक 6 में से ये 2 सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है? यू एग्री विद मी? Yes. Yes. तो जो डोंट यू थिंक ये जो सरफेस पे बच्चे देखो माइनस माइनस माइनस, मतलब इधर सब माइनस आ चुका है, इधर सब प्लस आ चुका है, राइट? Yes. Yes. इसको भी हम लोग क्या बच्चा पोलराइजेशन बोल सकते हैं, क्योंकि पहला तो ऐसा नहीं था ना, पहले प्लस माइनस सब था। तो अल्टीमेटली नेट चार्ज ऑन एनी सरफेस विल बी व्हाट? 0, राइट? Yes. इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, जो स्लैब को, एक एक्सटीरियर, ऑफकोर्स लेफ्ट है, हाँ क्या बोल रहे हो बच्चा? ब्लर है No, sir. वो, थोड़ा रिजोल्यूशन में हो रहा है, बट वो ठीक हो रहा है थोड़ा देर के बाद, राइट? Yes. Yes. Yes, sir. फाइन बच्चा, फाइन। देखो बच्चे, ये इन एक्सटीरियर लेफ्ट है मेरे हिसाब से, और ये जो रीजन है ये एक्सटीरियर राइट है, राइट? Yes, बच्चा sir. आवाज आ रहा है? नहीं समझा Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, ये जो रीजन है ना, इधर नेगेटिव जमा हुआ है, उसको मैंने एक रीजन कंसिडर किया, और जो पॉजिटिव जमा हुआ उसको एक रीजन, और मिडिल वाला रीजन इंटीरियर रीजन। यस सर। Yes. तो Yes. बच्चे Yes. बताओ मेरे को, मिडिल वाला प्लस माइनस, नेट चार्ज कितना है? 0 है, Yes. Yes. राइट? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बोलो बच्चा, बोलो, किसी को नहीं समझे तो पूछ सकते हो आप। सर 0 कैसे हुआ? नहीं बच्चे देखो, ये माइनस है, बराबर है ना? तो अभी Yes. ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो अंदर वाला रीजन में नेट चार्ज क्या है? 0 है ना, 0. Zero. राइट? यस यस Yes. मतलब ये जो चार्ज एक्युमुलेट होता है, ये वाला देखो, ये वाला चार्ज, सपोज इधर नेट चार्ज माइनस क्यू है, तो इसको हम लोग माइनस क्यू पी लिख सकते हैं, एंड इधर जो चार्ज आता है उसको हम लोग प्लस क्यू पी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना इधर माइनस आता है उतना इधर प्लस आता है, राइट? Yes. 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 और यही चार्ज को हम लोग पोलराइजेशन चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन चार्ज, यस राइट? बच्चा, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Sir. नाउ डोंट यू थिंक these charges they are bound to the surface? ये जो सरफेस है उसको बाउंड है, ऐसा चिपका हुआ है, राइट? इसके लिए Yes. इसको हम लोग बाउंड चार्जेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? बाउंड चार्जेस। Bound Bound charges. Bound charges. इज इट ओके?
Yes, sir. Yes. तो डोंट यू थिंक अभी अंदर वाला जो नेट चार्ज 0 है तो इसको हम लोग गायब करेंगे, सो विल रिमूव दिस, क्योंकि वैसा भी नेट चार्ज 0 है तो उसको रिमूव किया। डोंट यू थिंक हम लोग को इधर नेगेटिव बचेगा, मतलब और राइट में पॉजिटिव। इधर नेगेटिव हाँ बच्चा बराबर। रहेगा। तो देखो इधर आपको नेगेटिव नेगेटिव आएगा एंड इधर आपको पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा, राइट? Yes. Yes. क्योंकि अंदर नेट चार्ज तो 0 है, राइट बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. तो अभी डोंट यू थिंक इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मतलब इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक का अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट होगा, राइट? एंड वो जो Yes, इलेक्ट्रिक yes, फील्ड है yes. उसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन बोलेंगे। क्या बोलते हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, Polarization. Polarization. हाँ बोलो बच्चा। सर ये बड़ा रहेगा ईपी, ये नहीं बड़े रहेगा, वो इसमें अप्लाइड अप्लाइड से हमेशा कम रहेगा, राइट? बट Yes, वो sir, समझा। इलेक्ट्रिक Yes. फील्ड का साथ बढ़ेगा जरूर, बट उससे कम रहेगा। बच्चा इधर तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब हम लोग ने एक्सटीरियर लेफ्ट, इंटीरियर एक्सटीरियर राइट, इंटीरियर का नेट चार्ज 0 है तो गायब कर दिया, तो खाली नेगेटिव पॉजिटिव बच गया। मतलब दिस इज व्हाट हैपेंस बिकॉज ऑफ पोलराइजेशन, क्योंकि पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, सब जगह नेट चार्ज क्या था? सरफेस में 0 था, राइट? Yes. Yes. बच्चा क्लियर है? एनी कंफ्यूजन? No, sir. फाइन। सो अभी ई जो है, ई ऑब्वियसली इट इज गोइंग टू बी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट? एंड ईपी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, Polarization. Polarization. ड्यू टू पोलराइजेशन। अभी दोनों को मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको मैं ई डैश ले रहा हूं, दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट ओके? Yes. 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 पर वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर का जो प्लेट है ना बच्चा, उसके उसका पर उसका नेट पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक हाँ उसका नेट मैं बता रहा इलेक्ट्रिक हूँ। अभी ई हमेशा ईपी से ज्यादा है तो ई डैश का भी डायरेक्शन ऐसा होगा, मतलब Yes. ऐसा बनाएंगे। Yes. तो सपोज मैंने इसको खाली ऐसा दिखाया, राइट? तो ये आपका स्लैब है, चलो बना देते हैं कि क्यों तकलीफ। सो अभी बच्चा देखो, आपका ये प्लस है और ये माइनस है, तो बाहर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहता है, राइट? ईपी, Yes. सॉरी ई Yes. बार। अभी अंदर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, वो भी ई डायरेक्शन में रहेगा, जिसका ई डैश होगा, विच विल बी ई माइनस ईपी होगा, राइट? Yes, sir. समझो। मतलब डायरेक्शन यही रहेगा बट ई से कम रहेगा। इज इट ओके? Yes. 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 तो आई होप सबको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि पोलराइजेशन की वजह से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, जो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड जो किया है उसको अपोजिट अपोज करता है, राइट? Yes. एनी कंफ्यूजन बच्चा? इज इट वेरी क्लियर? Yes, sir. तो ये लिख सकता हूं मैं, ड्यू टू पोलराइजेशन, ड्यू टू पोलराइजेशन, the electric field inside the dielectric, the electric field inside the dielectric is less than electric field applied, and it is given by obviously E dash bar will be equal to E bar minus EP bar. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Any confusion बच्चा? No. No. एंड इतना तो पक्का है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने ज्यादा अप्लाई किया तो अलाइनमेंट भी ज्यादा होगा, तो पोलराइजेशन भी ज्यादा होगा, राइट? तो ई Yes. क्या होगा बच्चा? ई का वैल्यू बढ़ेगा। ऑफ कोर्स बढ़ेगा, राइट? Yes. Yes. लिमिट तक तो बढ़ेगा। आई होप इट इज वेरी क्लियर, Yes, sir. राइट? बट इतना याद रखो, जैसे ये निकाला मैंने फील्ड,
राइट। तो चलो ये मैं नोट में लिखता हूं, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिमूव्ड, व्हाट हैपेंस बच्चा? Electric Everything field will is come back equal to to its normal yes. state, because Yes. बाकी बाद में बचता कौन है? टेम्परेचर ही है, उसका ही राज चलेगा, राइट। Yes. Random Yes. हो जाएगा. हाँ, द इंड्यूस्ड और नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट disappears, बराबर है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Okay. And it comes back to original state, comes back to original state, original state. बच्चे any confusion? No sir. ये सब डायग्राम समझ में है अच्छे से? Yes sir. Yes, sir. sir. फाइन बच्चा, लिख लो, कंप्लीट करो। अब बच्चा एक मिनट रुको रुको, इधर तक समझ में आया, राइट? Yes sir. Yes, हाँ sir. बच्चा अभी ध्यान से सुनो। ये जो एरिया है तो ऑब्वियसली प्लेन है ना बच्चा, ऐसा Yes. ऐसा है ना, ऐसा राइट। Yes. 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 अभी बच्चा जब ये सिचुएशन में इधर नेट चार्ज क्या था? 0 था, बराबर है? Yes. Yes. बराबर ना बच्चा? प्लस माइनस Yes, प्लस sir. माइनस प्लस माइनस Yes 0। sir. जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया तो इधर सब प्लस Plus, आया, इधर सब माइनस आया, राइट। minus. Yes. Yes. अभी बच्चा इसका एक यूनिट एरिया पे नेट चार्ज कितना है इधर देखूंगा मैं, तो 0 था। Yes. Yes. बच्चा इसका यूनिट एरिया पे इधर नेट चार्ज क्या था? 0 था। इधर 0 0 था। है क्या? No. No. हाँ बच्चा, वो जितना भी चार्ज उसका यूनिट एरिया पे आता है उसको हम लोग सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं, वो भी पोलराइजेशन। बच्चा समझा? सर नहीं समझा सर, एक बार सर। No. बच्चा और एक बार देखो, ये सरफेस मैंने लिया तो इधर चार्ज क्या रहेगा बच्चा? प्लस माइनस रहेगा ना। Yes. Yes, sir. Sir. तो पूरा सरफेस का चार्ज क्या है? 0। Zero. Yes. तो यूनिट एरिया का चार्ज कितना? 0। Zero. 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 बट इधर हम लोग क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इधर सब पॉजिटिव आ जाता है, राइट। Yes. पूरा Yes. सरफेस का चार्ज पॉजिटिव है ना बच्चा। Yes. Yes. तो अभी यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज आता है, यूनिट एरिया में जो चार्ज आता है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जिसको हम लोग सिग्मा लिखते हैं, बराबर है? Yes. Yes. पी क्यों हाँ, लिया? yes, sir. पी Yes. क्यों लिखा बच्चा? ये चार्ज पोलराइजेशन का चार्ज डेंसिटी है, राइट। Yes, Yes. sir. Yes, sir. अभी इसका मतलब ये जो सरफेस जो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, मैं फिर से बता रहा हूं, द सरफेस विच आर परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका जो चार्ज डेंसिटी है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट एरिया में जो चार्ज है वो ही पोलराइजेशन होता है। इज इट ओके? Yes. Yes. तो मतलब पोलराइजेशन का कितना डेफिनेशन हुआ बच्चा? 2 हुआ। एक, नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर है? यस Yes. नहीं तो ये बोल सकते हैं, इट इज सरफेस डेंसिटी ऑफ द सरफेस which is of the surface of the slab which is perpendicular to the direction of electric field, right? Yes. Yes. मतलब वो सरफेस का सरफेस चार्ज डेंसिटी लेना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, क्योंकि पहला तो वैल्यू 0 था। यू एग्री विद मी? यस Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. एनी कंफ्यूजन बच्चा? No. ओके, कंप्लीट कर लो बच्चा। तो स्टेटमेंट रिपीट करो ना आप सरफेस हाँ, polarization is also defined as surface charge density of the surface of dielectric
of the surface of dielectric Yes, sir. Yes. perpendicular to the direction of electric field, right? Yes, sir. Yes, sir. बिकॉज अभी बच्चा पैरेलल में अभी भी जीरो ही है, देखो पैरेलल में तुम ऊपर देख प्लस माइनस जीरो ही है, राइट? सर नहीं समझा। बच्चा पैरेलल सरफेस है ना, 6 में से 2 परपेंडिकुलर है, Yes, 4 sir. पैरेलल है ना बच्चा। यस सर। तो 4 जो है उसका पहला भी जीरो है, अभी भी क्या है देखो, आप गिन के बताओ मेरे को, जो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, उसमें कुछ Zero चार्ज ही है। एक्युमुलेट हुआ है क्या? नहीं है ना। नो। No. तो वो तो पैरेलल नहीं ले सकते क्योंकि उसमें कुछ फर्क नहीं गिरता है। तो जिसमें फर्क गिर रहा है जो प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड है, राइट? यस सर। बच्चा पक्का समझा या मैं कुछ ऐसा स्क्वायर बॉक्स लेके दिखाओ? तो सरफेस वाला नहीं समझा। सरफेस। बच्चा ये जो सरफेस है ना, पहला तुम विजुअलाइज कर, ये आपका रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक ऊपर आता है ऐसा सरफेस प्लेन, देन साइड पे आएगा, देन नीचे आएगा, देन ऊपर आएगा, देन एक सामने से आएगा, एक पीछे से आएगा। यस। अभी बच्चे एक ऊपर है, साइड पे है, इधर है, इधर है। उधर तो नेट चार्ज क्या है? प्लस माइनस जीरो। इधर भी देखो प्लस माइनस प्लस, ऊपर तो जीरो ही है ना। यस सर। जीरो है। अभी देखो ये जो सरफेस है परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर, ये वाला और ये वाला, दोनों थिंग, उधर तो चार्ज आ चुका है, अभी पहला जीरो था, अभी प्लस आ गया एक साइड, दूसरे साइड में माइनस आ गया, राइट? यस। तो आप सरफेस कौन सा लेंगे? प्लेन पैरेलल वाला लेंगे कि परपेंडिकुलर वाला? परपेंडिकुलर वाला। हाँ, क्योंकि पैरेलल में कुछ फर्क ही नहीं गिरा है, वो तो वैसा ही है जो पहला जैसा था, राइट? यस यस। हाँ, अभी मतलब मैं ये बोल रहा हूं, जो प्लेन डाइइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, वो प्लेन में जो भी सरफेस डेंसिटी होगा वो पोलराइजेशन होगा, क्योंकि पहला तो जीरो था, राइट? यस यस सर। अभी समझा बच्चा? यस सर। ओके।
अच्छा, finished? No, sir. No, sir. Done, sir. So everybody finished? Yes, sir. Yes, sir. Fine. अच्छा, इधर एक बात याद रख लो, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते जाएंगे सब अलाइन हो जाएगा, उसके बाद भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया सो ऑब्वियसली इधर क्या होगा बच्चे, ब्रेक होगा, राइट? ये जो डाइपोल स्ट्रक्चर है इट विल ब्रेक, राइट? Yes. मतलब ब्रेक Yes. हुआ तो देयर विल बी अ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, राइट? Yes. मतलब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज कौन होगा? डाइलेक्ट्रिक मीडियम, राइट? वो जो सिचुएशन को हम लोग डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। एंड वो जो फील्ड अप्लाई करते हैं हम लोग जिधर वो ब्रेकडाउन होता है उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइलेक्ट्रिक कैन विथस्टैंड, विद होल्ड कर सकता है, उसको हम लोग Yes. डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. अभी बच्चा ये जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का बेस्ट एग्जांपल क्या मालूम है? आप वेल्डिंग करते हुए देखा है कि किसी को घर पे विंडो पे करते Yes, sir. होंगे, राइट? वो लोग क्या करते हैं बच्चे, एक रॉड लेते हैं एंड वो रॉड को वो लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं मोर देन रिक्वायर्ड, दोनों देखो मेल्ट होके स्पार्क बाहर आता है, Yes. राइट? तो वो बेस्ट एग्जांपल है बच्चा जिधर आप डाई इलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन कर रहे हो मटेरियल को। आई होप यू गेटिंग। Yes, sir. Yes, sir. फाइन। सो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं वो जिसका बाद वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, उसको हम लोग डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Fine. Yes. Next one, it is going to be capacitors.
So next one, it is capacitors. And capacitance, क्योंकि जैसा रेसिस्टर होता है वैसे ही रेसिस्टेंस होता है, जैसा कैपेसिटर है तो ऑब्वियसली कैपेसिटेंस होगा, राइट? बराबर ना बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. Fine. बच्चा, बिफोर गेटिंग इनटू कैपेसिटर्स आई विल गेट इनटू कैपेसिटेंस फर्स्ट. बच्चा, कैपेसिटेंस को हम लोग कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर भी बोलते हैं. मतलब बेसिकली कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं. अभी कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर क्या है? देखो, सपोज एक कंडक्टर है जो न्यूट्रल है. क्या बच्चा? न्यूट्रल, उसमें चार्ज है ही नहीं है. तो चार्ज नहीं है तो आप चार्ज देंगे. सो चार्ज देंगे तो आप वर्क डन करेंगे. तो वर्क डन करेंगे तो उसमें स्टोर होगा. तो इसका मतलब जैसे जैसा चार्ज एक्यूमुलेट होते जाएगा, डोंट यू थिंक इसका पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, Yes. Yes. राइट? अभी चार्ज देते गए पोटेंशियल बढ़ते रहेगा. बट डोंट यू थिंक एक मटेरियल को ऊपर चार्ज आप इनफाइनाइट तो दे नहीं सकते, एक लिमिट है देने का, Yes. राइट? Yes. अभी वो चार्ज जितना होल्ड कर सकता है उसको ही हम लोग कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर बोलते हैं, राइट? Yes. बच्चा, ऐसा है कि एक छोटा पेपर लिया मैंने, चार्ज देते गया, विल इट होल्ड इनफाइनाइट चार्ज बच्चा, या देयर इज अ No. लिमिट फॉर होल्डिंग? Yes. Limit. Limit होगा. Yes. एब्सोल्युटली लिमिट फॉर होल्डिंग है. इसका मतलब फॉर एनी कंडक्टर इतना तो पक्का है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल. मोर चार्ज मोर पोटेंशियल, लेस चार्ज लेस पोटेंशियल, राइट? Yes, sir. So I can write Q is equal to CV. Basically V constant of proportionality है, but with respect to conductor उसको हम लोग बोलते हैं capacity of conductor, नहीं तो बोलते हैं capacitance. Is it okay? Yes. Yes. So where C is constant of proportionality, and with respect to conductor, it is called capacitance या capacity of a conductor. Is it okay? Yes, sir. नया टर्म है बच्चा, तो फॉर्मूला लिखेंगे. C एक साइड, so it will become Q upon V. तो फॉर्मूला मिला तो SI यूनिट भी लिखेंगे. तो SI यूनिट जो है ये कुलुम है, चार्ज है तो, एंड दिस इज वोल्ट, राइट? Yes. Yes. एंड ये कुलुम पर वोल्ट को ही हम लोग बोलते हैं फैरेड. सो कुलुम पर वोल्ट विल बी रेफर्ड एज व्हाट बच्चा? फैरेड, राइट? Yes. Yes. अभी Sir. सपोज आपको 1 फैरेड को डिफाइन करना है, 1 फैरेड, देन कुलुम को 1 फैरेड लिखा. डेफिनेशन ऑफ 1 फैरेड, कैसे डिफाइन करेंगे बताओ? तो कुलुम को 1 फैरेड लिखा, तो चार्ज 1 कुलुम है एंड पोटेंशियल 1 वोल्ट, 1 राइट? volt. Yes. तो बताएं बच्चा कैसा डिफाइन करेंगे 1 फैरेड को? बोलो, जल्दी बोलो. बच्चा सिंपल है. अभी एक कंडक्टर पे मैंने चार्ज 1 कुलुम दिया. कितना कुलुम बच्चा? 1 coulomb. 1 One coulomb. तो coulomb. उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ गया तो उसका कैपेसिटेंस 1 फैरेड है. 1 समझ में आया? farad. Yes. राइट? Yes. If 1 coulomb charge is given to the conductor rises its potential by
1 volt, then capacitance of conductor is said to be conductor. It is said to be 1 farad. Is it okay बच्चा? समझ में आया clearly? Yes, sir. बट बच्चा ध्यान से सुनो, ये जो 1 फैरेड का जो कॉन्सेप्ट है, इट इज वेरी बिग. मतलब आप अर्थ को कंडक्टर मान के आप चार्ज देना शुरू किया, राइट, तब भी उसका जो कैपेसिटेंस होगा अर्थ का, वो मिली फैरेड में होता है बच्चा. मिली फैरेड समझ में आता है Yes. बच्चा? अर्थ को लिया आपने, अर्थ को चार्ज देते गए, तो इसका कैपेसिटेंस 711 आई थिंक मिली फैरेड ऐसा कुछ आता है. सो आई मीन इट इज वेरी लेस, राइट? Yes. Yes. मतलब ये जो मतलब जो फैरेड का कॉन्सेप्ट है बहुत बड़ा है. मतलब 1 फैरेड आपको चाहिए तो आपको बहुत बड़ा कंडक्टर लगेगा जो अर्थ से भी बड़ा है, राइट? Yes. Sir. तो ऑब्वियसली मेरा जो प्रैक्टिकल है, सर्किट है, उसमें फैरेड को तो यूज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि आई कैन नॉट क्रिएट ए कंडक्टर मोर देन द अर्थ, राइट? Yes. सो प्रैक्टिकल केस में, इन प्रैक्टिकल कंडीशन, हम लोग फैरेड यूज नहीं करेंगे क्योंकि वो बड़ा वैल्यू है. तो हम लोग यूज करते हैं माइक्रो फैरेड. Yes. माइक्रो मतलब -6 फैरेड है. हम लोग यूज करते हैं नैनो फैरेड, -9 फैरेड है. हम लोग यूज करते हैं पिको फैरेड, दैट इज टेंडर्स टू -12 फैरेड, लाइक दैट. आई होप इट इज क्लियर. So Yes, these sir. are the practical values of capacitance which we use because Faraday is very big, right? Yes. Yes. 1 farad कितना होता है? क्या बोल रहे हो 1 farad कितना होता है वैल्यू? बच्चा? 1 फैरेड का वैल्यू इन द सेंस, हम लोग को जो कंडक्टर अभी चाहिए, तो अभी देखो आगे फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो पता चलेगा कि कितना बड़ा कंडक्टर लगेगा, Yes sir, समझा. राइट? मतलब इतना तो पक्का है, इफ यू कंसिडर अर्थ देन उसका फैरेड मिली फैरेड में आता है. तो आप समझ सकते हो मिली और फैरेड में फिर से 1000 का डिफरेंस है, राइट? Yes sir. Yes, sir. Sir, yes. तो इसके लिए हम लोग जब भी आप कुछ इलेक्ट्रिक सर्किट लेंगे, यू कैन नॉट हैव ए वैल्यू मोर देन माइक्रो फैरेड, यू विल हैव लेस देन दैट. इज इट क्लियर? Yes. 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 Yes, sir. अभी बच्चा हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर, क्योंकि चलो कैपेसिटी तो आपको समझ में आ गई. अभी बच्चे देखो, एक रेसिस्टर एक डिवाइस है जो करंट को अपोज करता है. अपोज क्यों करता Yes. है? जब उसमें करंट पास करता है तो हीट प्रोड्यूस होता है, और वो हीट वेस्ट मतलब वेस्ट होके चला जाता है, राइट? Yes. बराबर ना बच्चा? So basically Yes, we sir. are wasting energy when you connect resistor in electric circuit, because when current flows through resistor, ultimately current has to do some work against the opposition, and that energy will be dissipated by means of heat, and that is going to be the loss of energy, right? Yes. Yes. So Yes. it means we want one device which will store energy, at the same time it will oppose the current. मतलब oppose करेगा जरूर, but energy waste होने नहीं देगा. वो charge मतलब energy को store करेगा, right? Yes. Yes, sir. And वो जो डिवाइस है बच्चा, उसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं. मतलब कैपेसिटर, इट इज अ डिवाइस व्हिच विल स्टोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, राइट? Yes sir. Yes. मतलब सिंपल वर्ड्स में, Store करेगा ना? हाँ Potential energy store करेगा ना? हाँ हाँ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो, मतलब इलेक्ट्रिक एनर्जी का फॉर्म में रहेगा, मैग्नेटिक का नहीं रहेगा, राइट? Yes sir. सो बच्चे, डिवाइस व्हिच कैन स्टोर नंबर 1 electric charge at low potential is called capacitor. Otherwise, second, electrostatic potential energy. Sir, at Electro- low potential नहीं समझा. क्या बोल रहे हो? At low potential नहीं समझा sir. वो तो बच्चे जब वर्किंग देखेंगे तो मैं बताऊंगा. पोटेंशियल कम करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग चार्ज को होल्ड ज्यादा कर सकते हैं, Yes. राइट? तो ऑफ कोर्स इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी,
एंड ऑफ कोर्स इसको आप चाहिए तो इलेक्ट्रिक एनर्जी भी बोल सकते हैं, ये वर्डिंग नहीं आया, राइट? सो ए डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एट लो पोटेंशियल और electrostatic potential energy, in bracket you can write electric energy, is called capacitor. Is called capacitor. Is it okay, bachcha? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So complete kar lo, bachcha. सर एट लो पोटेंशियल पे क्यों? बच्चा क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा किया तो प्रॉब्लम है ना। सर ज्यादा चार्जेस आ जाएंगे। नहीं 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 नहीं, देखो ज्यादा चार्जेस नहीं, तुम जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ते गए तो देयर इज ऑलवेज चांस दैट उधर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो सकता है क्योंकि फील्ड भी स्ट्रांग होगा, राइट? Yes. अभी कम Yes, sir. पोटेंशियल रखा तुमने, सपोज तुमने क्रिएट किया, चार्ज दे रहा हूं बट पोटेंशियल बढ़ रहा है, बट स्लोली बढ़ रहा है, राइट? तो यू कैन होल्ड मोर चार्ज। सर नहीं समझा लो पोटेंशियल। बच्चा मैं ये बोल रहा हूं पोटेंशियल चार्ज एक्युमुलेशन के साथ बढ़ता है ना, यस सर यस। बट हम लोग पोटेंशियल को जरूर बढ़ाएंगे बट स्लोली बढ़ाएंगे, राइट? दैट विल बी द कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, जो प्रिंसिपल में हम लोग डिस्कस करेंगे कैसा लो पोटेंशियल क्रिएट करेंगे हम लोग। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि पोटेंशियल बढ़ता ही नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं, बढ़ेगा बट कम बढ़ेगा, राइट? यस सर। अभी जब तक आप डायग्राम नहीं देखेंगे, उसका स्ट्रक्चर नहीं देखेंगे, तो अभी आप पूछ नहीं सकते हो ना कि सर लो पोटेंशियल कैसा क्रिएट हो रहा है। सो फर्स्ट यू शुड नो हाउ इट इज, देन यू शुड नो द Yes. प्रिंसिपल, देन आपको समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं सर, राइट? Yes, sir. यस सर। सर कैपेसिटर कहाँ कहाँ यूज होता है? सर्किट्स में यूज होता है बच्चा, जिधर उसको अवॉइड करना है तो उधर यूज होगा, जिधर वोल्टेज फ्लक्चुएशन है, मतलब करंट कम ज्यादा हो रहा है तो उधर यूज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द सर्किट्स, यस। एसी में तो यूज उसको ही करते हैं। सर फैन में भी यूज होता है ना? ऑफ कोर्स वो जो स्पीड कंट्रोलिंग डिवाइस है ना, वो तो कैपेसिटर है, वो बड़ा सा है ना व्हाइट कलर वाला, यस Yes, सर sir. यस। Yes. Yes. Yes, sir. हाँ वही कैपेसिटर, उसको कंडेंसर भी बोलते हैं। कंडेंसर यस। कंडेंसर इसके लिए बोलते हैं क्योंकि पुराना जो जो लोग थे उनको लगता था कि चार्ज को कंडेंस करके रखा जाता है कैपेसिटर के अंदर, देन दे रियलाइज चार्ज कंडेंस नहीं हो सकता, तो देन दे चेंज द नेम फ्रॉम कंडेंसर टू कैपेसिटर। समझा? यस सर समझा। Yes, Yes, sir.
बच्चा finished? Yes, No, sir. sir. No, sir. Okay. सर स्क्रीन ब्लर है। नहीं बच्चा दिख रहा है। No, sir. No, blur नहीं है. There may be some network issue from your side बच्चा, दिख रहा है। Yes, yes. ऐसा कुछ होता है तो बच्चा लॉग आउट होके लॉग इन हो जाओ, चलेगा। So I hope it is done. Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है। अभी बच्चा ये जो कैपेसिटर है ऑब्वियसली चार्ज को होल्ड करता है, देन एनर्जी स्टोर करता है, सब ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर है मोस्ट ऑफ द टाइम ऑब्वियसली इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स, दो कंडक्टर्स हो गए इसमें, एंड कुछ भी शेप होने दो बच्चा उसको बोलना प्लेट है। मतलब इट कंसिस्ट ऑफ टू प्लेट्स, शेप कुछ भी होने दो, वो सिलेंडर होने दो, स्फीयर होने दो, प्लेट होने दो, तो बोलना प्लेट ही है। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Fine. So it consists of अभी सपोज पैरेलल प्लेट में तो दो प्लेट लेते हैं, अदरवाइज दो स्फीयर्स लेंगे विद डिफरेंट डायमीटर्स, या दो सिलेंडर लेंगे, राइट? सो इट कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ कंडक्टर्स, ए सेट ऑफ कंडक्टर्स, राइट बच्चे? जो कंडक्टर्स है इसको हम लोग प्लेट ही बोलेंगे, कुछ भी शेप होने दो, राइट? Yes, sir. Yes. Yes. सो ऑब्वियसली ये कंडक्ट करता है, तो इट इज कंडक्टिंग प्लेट्स, irrespective of what kind shape it is going to be, we will call it as plates, right? Having it consists of a set of conductors having charges on them, having charges on them, and in between the plates you're going to have dielectric medium separated by a dielectric medium. तो बेस्ट ये बोल सकते हो बच्चा, इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर एज वेल एज आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। समझ में आ रहा है Yes. बच्चा? इट कंसिस्ट ऑफ टू कंडक्टर्स separate isolated from each other as well as isolated from the surrounding. I hope you're getting the point. Isolated मतलब no connection बच्चा। Yes. Yes, अभी sir. डाइलेक्ट्रिक मीडियम कंडक्ट करता है क्या? No, sir. No, no. तो अल्टीमेटली दो कंडक्टर के बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तो अल्टीमेटली करंट नहीं जा सकता ना दोनों के बीच में।
Yes. Yes, sir. मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं है तो आइसोलेशन बोलते हैं ना। Yes, sir. समझा। Yes. ठीक है, ध्यान दो। अभी सपोज मैंने दो कंडक्टर्स या प्लेट्स कंसिडर की, एक प्लेट ए है और एक प्लेट बी है। सो दोनों का बीच में ऑब्वियसली डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है, तो अल्टीमेटली आपस में कनेक्शंस नहीं है। तो हियर यू गॉट डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो अभी हम लोग ने क्या किया बच्चा, सेल कनेक्ट किया, तो ऑब्वियसली चार्ज होगा, राइट? बच्चा चार्ज होगा ना। Yes, sir. अभी इधर पॉजिटिव चार्ज आया, उतना ही नेगेटिव चार्ज दूसरा प्लेट में आएगा, क्योंकि जब हम लोग प्लेट को सेलेक्ट करते हैं तो ऐसा सेलेक्ट करते हैं कि उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, मींस दे गॉट मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एंड इधर चार्ज प्लस क्यू है, तो अल्टीमेटली इधर चार्ज क्या होगा, माइनस क्यू होगा, Minus Right? Q. Yes. Yes. डेफिनेटली एक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होगा जिसका वैल्यू में ई बार ले रहा हूं, एंड ये जो प्लेट है उसका पोटेंशियल V1 है, ये प्लेट का पोटेंशियल V2 है, बट दोनों का बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मैं V ले रहा हूं। इज इट ओके? Yes, sir. Yes. एंड ऑब्वियसली आपको पता होगा V का वैल्यू, वेयर V will be V1 minus V2 because it will be the potential difference between the two plates, right? Yes. 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 बच्चे इधर तक सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एंड इतना तो पक्का है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जो है, it obviously depends on charge, more electric field, less charge, less electric field, right? Yes. Yes. मतलब इधर इतना तो पक्का है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा, बट सिग्मा डिपेंड्स ऑन चार्ज, राइट? Yes. Yes. सिग्मा डिपेंड्स ऑन चार्ज, so ultimately इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, it purely depends on charge। बच्चे इधर तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Any confusion? Any confusion? No, sir. ठीक है, अभी पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो आपको डेफिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस का पता है। डोंट थिंक इफ V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी द वर्क डन। सॉरी, मैंने A लिया है एंड इसको B लिया, मैंने बोला है बट लिखा नहीं है, तो दिस इज प्लेट A, दिस इज प्लेट B। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the potential difference V, right? Don't you think it is the work done to move? क्योंकि आपको पता है potential difference between 2 points is nothing but work done to move a unit positive charge from one point to another point, right? Yes. बराबर है बच्चा? Yes, sir. So potential difference is the work done to move a unit, आप पॉजिटिव चार्ज लिखो या टेस्ट चार्ज लिखो, इट्स अप टू यू, यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम कंडक्टर। बच्चा बोलो बी लिखू कि ए लिखू पहला? B. हाँ, क्यों? क्योंकि V1 माइनस V2 है, तो फाइनल V1 वाला लिया है, तो Yes. कंडक्टर B2 कंडक्टर A, बराबर है? Yes, sir. Yes. बच्चा क्लियर है? Yes. Of course against the electric field, जो Yes, yes. ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका अगेंस्ट है, बराबर है? Yes. राइट? Yes, sir. हाँ, बट अभी हम लोग को पता है ये जो वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, राइट? Yes. Yes. So I can definitely say your work done is directly proportional to charge. Work done is directly proportional to charge, right? And work done corresponds to potential. It means potential is directly proportional to charge, right? Yes. It means V upon Q is going to be constant, right? Yes. Yes.
सॉरी सॉरी, इसको ये साइड में लेते हैं क्योंकि हम लोग को Q अपॉन V चाहिए, राइट? सो इट इज Q अपॉन V विल बी कांस्टेंट। बच्चा उल्टा भी कर सकते हो, राइट? क्योंकि चार्ज हम लोग बाहर से देते हैं, तो चेंज होने वाला फैक्टर क्या है? V है, बराबर है? बच्चा समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. बच्चा एक कंडक्टर को मैंने Q दिया तो इधर 2 वोल्ट हो सकता है, दूसरा कंडक्टर को मैंने Q दिया तो इधर 3 वोल्ट हो सकता है। तो चेंज कौन हो रहा है, चार्ज है कि पोटेंशियल? Potential. हाँ, अभी समझ में आया? Yes, sir. फाइन। सो ये जो कांस्टेंट है इसको ही हम लोग C बोलते हैं, एंड ऑफ कोर्स इट विल बी व्हाट? कैपेसिटेंस होगा, राइट? Yes. So here C is capacitance of the capacitor. Capacitor. And obviously क्या होता है वो हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस किया है, राइट? बराबर है? Yes. Any confusion बच्चा? It is capacitance of the capacitor and it depends on shape, right? Shape के ऊपर डिपेंड रहेगा, size and distance between conductor. Between कैसे डिपेंड करेगा शेप साइज पे? बच्चा फॉर्मूला में डिराइव करूंगा उसको, क्योंकि फॉर्मूला से ये सब आ जाएगा जो मैंने लिखा है, राइट? Yes, sir. Yes, sir. बट अभी आपको एक शॉकिंग न्यूज दे रहा हूं बच्चा, ये चार्ज और पोटेंशियल के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बता सकते हो क्यों? एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कांस्टेंट है। हाँ, कांस्टेंट इन द सेंस जब भी आप वोल्टेज मतलब चार्ज बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगा, तो रेशियो कांस्टेंट होगा, यस सर, यस सर। राइट? Yes. बट याद रखना फॉर्मूला में Q और V आता है, बट इट विल नॉट डिपेंड ऑन चार्ज एंड पोटेंशियल, क्योंकि ये बढ़ता है तो ये भी बढ़ता है, रेशियो कांस्टेंट। ये कम होता है ये भी कम होता है, रेशियो कांस्टेंट। इज इट ओके? Yes, sir. यस सो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल, ये हमेशा याद रखना है। इज इट क्लियर? Yes, sir. एंड लास्ट में बच्चा सिंबल मेंशन करना, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 प्लेट्स, छोटा छोटा प्लेट विद द सेम हाइट, सेल जैसा नहीं करना है, एंड ऑफ कोर्स नीचे C लिख देंगे। इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes. फाइन, कंप्लीट कर लो बच्चे।
Then No, sir.